हेलो बच्चों, वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर ऑफ binomial distribution. This chapter I will be covering in part 1 and part 2. Part 1a, now we are talking about introduction, and part 2a, 2b we will do more complex example. In this part, I will solve one simple example for you. समझ गए बच्चों? Now, let me tell you, this is a simple chapter, this is a short chapter, और यहां जो एग्जाम्पल आएंगे आप एक भी मार्क लूज नहीं करने का. वैसा तो मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि you should aim at 80 marks out of 80 as far as Maharashtra board is concerned. And all my videos I am explaining you in a very simple manner. I am taking important examples. So your duty is to understand the videos, understand the examples and calculations, and study the solved examples in your textbook. Especially I am talking about Maharashtra, but that is also applicable for all other board. Note down टाइप ऑफ एग्जाम्पल एंड मेथडोलॉजी ऑफ सॉल्विंग. इतना नोट्स हम लोग करेंगे, आपको आई एम गारंटिंग फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स. समझ गए बच्चों? एंड बिग चैप्टर्स लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल, आई हैव डिवाइडेड इनटू स्मॉल वीडियोस ऑफ 15-20 मिनट्स ईच, so that you are able to grasp this properly. चलो फिर देखेंगे ये क्या है. चलो, तो अभी हम लोग करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. समझ गए बच्चों? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. Binomial distribution we will be studying in 3 parts if necessary. Part 1 we will take introduction, Bernoulli's trial, binomial distribution का मतलब क्या है, probability, mean and variance in binomial distribution, and in part 2 as well as 3 we will solve more examples. Part 2 and 3 we will solve more examples. समझ गए? चलो अभी देखिए, some fundamental concept you try to understand. यहां बड़े बड़े वर्ड्स है, लेकिन ये वर्ड से हमें डरने की कुछ भी जरूरत नहीं है. समझ गए? Now what are these words? Let us see. Now he says many experiments are dichotomous. ये बड़ा वर्ड है, dichotomous. डाई मतलब टू, डाई का मतलब होता है टू. When we say कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का 2 एटम उसमें है. सल्फर डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन कितना है उसमें, 2 है. तो डाइकोटोमस मीन इन दैट एक्सपेरिमेंट देयर आर 2 आउटकम्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइकोटोमस. नाउ फॉर एग्जांपल, द आइटम इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ मशीन, तो इट कैन बी आइदर डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव. 2 ही आउटकम है. एमसीक्यू आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, यू कैन बी आइदर करेक्ट और यू कैन बी रॉन्ग. इफ यू टॉस अ कॉइन, क्या आएगा इसमें? एक तो टेल आएगा, नहीं तो हेड आएगा. बराबर है? नाउ इफ यू थ्रो डाई, इट इज नॉट अ डाइकोटोमस, बिकॉज वहां आउटकम क्या होता है, 1 2 3 4 5 6. बट इफ यू थ्रो अ टॉस अ कॉइन, कॉइन में तो 2 ही आउटकम है, एक तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा. समझ गए? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल डीलिंग विथ only dichotomous experiment और trials. मतलब एक ट्रायल में क्या होगा,
आउटकम कितने होंगे? मैक्सिमम 2, ओनली 2, नॉट मैक्सिमम 2. समझ गए? नाउ विच एवर इज द डिजायर्ड आउटकम, दैट इज कॉल्ड सक्सेस. विच इज द डिजायर्ड आउटकम, दैट इज कॉल्ड सक्सेस, and the other one is called failure. In every dichotomous experiment, there will be certain probability of success, which we are denoting by P, and there is certain probability of Q, that is probability of failure, and P plus Q will be always 1. So suppose I say कि hitting the target by a bullet, when I fire a gun, probability if I am a good shooter is 90%, means 0.9. तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी हो गया 0.9, फेलियर का प्रोबेबिलिटी हो गया 1 minus 0.9, that is 0.1. समझ गए? चलो एग्जाम्पल करेंगे तो और मालूम पड़ेगा. नाउ Bernoulli's trial. What is Bernoulli's trial? Bernoulli's trial is nothing but dichotomous experiment. मतलब वहां क्या है? आउटकम इज 2, एग्जैक्टली 2. समझ गए? आउटकम ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट इज एग्जैक्टली 2, exactly 2, and probability of success is always same in all trials. That means if I say I am a good shooter, my probability of hitting the target is 0.9. तो मैं 50 बार भी बुलेट फायर करूं, एवरी टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग विल बी 0.9. समझ गए? These two conditions, if they are satisfied, these are known as Bernoulli's trial. And what we are dealing in this chapter is only Bernoulli's trial. They will not use this word in example, and they will never ask you the definition of Bernoulli's trial. But you should know there are two outcomes. Probability of success is called P. Probability of failure is called Q. P plus Q will always be 1. And in every trial, the probability P remains constant. समझ गए? चलो. Now these are the formulae, only 3 formulae in this. Very simple formulae. Now, N is number of trials. N is number of trials. समझ गए? X is number of successes. P is probability of success in each trial, which is constant for every trial. Q is the probability of failure in each trial. P plus Q is always 1. समझ गए बच्चों? Now, sometimes it is denoted like this: X with this sign, B N P. ये कैसा बोलने में कैसा है ये? How it is read? Random variable X follows, इसका मतलब है follows the binomial distribution with parameter N and P. N is number of trials, P is the probability of success. Use this same wording every time, same notation every time. So probability of X successes out of N is given by NCX P raised to X Q raised to N minus X. Now बच्चों, why this chapter is called binomial distribution? Because this is the binomial theorem में जो terms होते हैं ना expansion के, those terms are like this: NCX A raised to X B raised to N minus X. If they tell you that you take a binomial expansion of A plus B raised to N, तो X plus 1 term आपको ऐसा मिलता है. So that is why it is called binomial distribution. ये formula याद रखो. Now you are confused. What is NCX? I will explain you in next slide before we go for solving a simple प्यारा example.
एक्सपेक्टेड वैल्यू याद है, आपने दूसरा चैप्टर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज, इन दिस केस इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इट इज एनपी, एंड वरायंस इसका मीनिंग है आपके पास इज एनपीक्यू, एंड यू नो स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वरायंस. समझ गए बच्चों? चलो नाउ NCX, ये आपको कंफ्यूजन करने वाला है. व्हाट इज NCX? NCX इज कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन x एट अ टाइम. समझ गए? सो NCX का फॉर्मूला हमें कैसा मिलता है? वेरी सिंपल. NCX इज इक्वल टू n factorial divided by x factorial multiplied by n minus x factorial. अभी फैक्टोरियल के ऊपर भी मैंने वीडियोस डाले हैं, छोटा वीडियो है ये देख लीजिए, बट आई विल टेल यू 5 फैक्टोरियल. इसका मतलब होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 5 से लेके एक एक कम करने तक 1 तक जाने का. 8 फैक्टोरियल क्या होता है? 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So these 8 factorial I can also write down as 8 7 6 8 into 7 into 6. और ये ऊपर देखो यहां से यहां तक क्या है बच्चों? इट इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल. समझ गया? दिस टेक्निक इज यूज्ड इन सिंप्लीफिकेशन. एंड रिमेंबर 1 फैक्टोरियल इज 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू रिमेंबर, 0 factorial is also 1. समझ गए बच्चों? वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन करो, और ये अर्लियर स्लाइड में जो फॉर्मूले दिए हैं ये भी नोट डाउन करो. 3 ही फॉर्मूला है जो रेड में मैंने बताए हैं. समझ गए? चलो अभी एक एग्जांपल करेंगे प्यारा सा छोटा सा. अभी ये देख लीजिए. Probability that the bullet fired will hit the target is 0.2. ये कोई अच्छा शूटर नहीं लग रहा है, उसका probability of hitting the target is only 0.2. Find the probability that out of 10 shots fired, कितने ट्रायल किया उसने? कितने शॉट का ट्रायल किया? 10 shots. He has shot 10. Exactly 2 will hit the target. समझ गए? Now n is total number of trials. Number of trials in Bernoulli's language कितना है? 10. We have to find, okay, p is small p is probability of success. अभी यहां हम सक्सेस क्या है? हमारा हिट विल हिट द टारगेट. हिटिंग का हिटिंग इज अ सक्सेस. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग? प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग इज 0.2. नाउ Q is probability of failure. तो वो कितना है? 1 minus p, बराबर है, बिकॉज p plus q is 1, so 1 minus 0.2 is 0.8. बराबर है बच्चों. एंड x is number of successes. तो हमें कितनी बार हिट हो गया ये निकालने का है. आउट ऑफ 10 2 बार हिट हो गया, ये हमें निकालने का है. तो प्रोबेबिलिटी
that this is capital P, that x will be equal to 2. हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है NCX, ये n ऊपर भी लिख सकता है, ऐसा भी लिख सकता है, मल्टीप्लाइड बाय P रेज टू x मल्टीप्लाइड बाय Q रेज टू n माइनस x. अभी हमें सबका वैल्यू मालूम है. n इज कितना? 10 C2 मल्टीप्लाइड बाय P कितना है? 2/10 रेज टू 2 मल्टीप्लाइड बाय Q कितना है? 0.8. सो आई विल राइट डाउन 8/10 रेज टू n माइनस x 10 माइनस 2. तो ये कितना मिल गया हमें बच्चों? 10 C2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू 2 अपॉन 10 रेज टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज टू 8 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू 8. इंडाइसेस तो याद है ना, 11वीं में क्या पहले ही सीखा है, समझ गए. अभी ये 10 C2 क्या होता है? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, बराबर है बच्चों, इंटू, अभी यहां मैं क्या करता हूं, 2 रेज टू 2 डिवाइडेड बाय 10 I will write down as 2 into 5. So it is 2 raised to 2 into 5 raised to 2. सिंप्लीफिकेशन कैसा करते हैं? इंडाइसेस जरा रिवाइज करो. इंडाइसेस मैंने एक वीडियो बनाया था मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के लिए, जहां मैंने ये सब बेसिक फॉर्मूले एक्सप्लेन किए हैं, समझ गए. इफ एंड मैंने उसमें बताया था कि इफ यू आर स्टडिंग 12th स्टैंडर्ड, प्लीज सी दिस वीडियो बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग 12th स्टैंडर्ड. तो ये भी देख लीजिए. अभी 8 is 2 raised to 3. So 2 raised to 3 that is raised to 8. और ये 10 raised to 8 में कैसा लिखेगा? 2 raised to 8 multiplied by 5 raised to 8. बराबर है, समझ गए. मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं. अभी this 2 raised to 2 will get cancel with this 2 raised to 2. अभी हम लोग अगले पेज पे जाएंगे, बट इतना याद रखो. So 10 factorial, how I can write? I am just simplifying. Same example. What I am simplifying? 10 factorial I will write down as 10 into 9 into 8 factorial divided by 2 factorial जो था, that is only 2. 2 into 1. और 10 minus 2 factorial is 8 factorial. देखिए, 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल गेट कैंसर इन 2. देखिए, ये मैंने सिंप्लीफाई किया है. 10 फैक्टोरियल कैसा लिखा? 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल. दिस 2 फैक्टोरियल आई हैव रिटन ओनली 2 फैक्टोरियल, मतलब 2. एंड 10 माइनस 2 इज 8, ये ब्रैकेट में है, तो 8 फैक्टोरियल. दिस इज 1/5 रेज टू 2. दिस विल बी 2 रेज टू 3 ब्रैकेट रेज टू 8, मतलब 2 रेज टू 24. 8 into 3 बराबर है. और ये 2 रेज टू 8 5 रेज टू 8 ऐसा ही लिखेंगे, समझ गए. तो यहां मैं लिखूंगा 1/5 रेज टू 2 बराबर है 1/5 रेज टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू कितना आया था बच्चों हमारा? 24 डिवाइडेड बाय 2 raised to 8 into 5 raised to 8. 2 raised to 8 into 5 raised to 8. अभी यहां क्या होता है देखो बच्चों, ये 8 फैक्टोरियल ये 1 फैक्टोरियल गया. दिस 2 will make it 5, so this will be 45 multiplied by, अभी यहां देखो क्या होता है, 2 raised to 24 minus 8, ये डिनोमिनेटर में, तो इट विल बी 2 raised to 24 minus 8. 2 raised to 24
minus 8 divided by 5 raised to 2 plus 8, because this 2 will get added here. What will be our answer final? प्यारा सा simplified answer, 45 multiplied by 2 raised to कितना आएगा बच्चों? 24 minus 8, that is 16 divided by 5 raised to 10. अभी इसके ऊपर और कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है. दिस इज अवर आंसर. समझ गए बच्चों? सो व्हाट यू हैव टू डू एट होमवर्क, you have to, before you start seeing the videos of part 2, first of all, by heart फॉर्मूले इन दिस चैप्टर. 3 ही फॉर्मूले हैं, बराबर है. सेकंड, सी वीडियो ऑन फैक्टोरियल. समझ गए? एंड इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर इज इंडाइसेस. ये भी वीडियो मैंने 11th स्टैंडर्ड का पूरा रिवीजन का वीडियो दिया है, तो वो वीडियो आप देख लीजिए. हाँ, टेक 1 day फॉर डूइंग दिस, देन ओनली यू गो टू सी माय नेक्स्ट वीडियो, विच इज वी विल बी टेकिंग more complicated examples on binomial distribution. समझ गए? Thank you.